So guys, this is me, Mr. S. Jomo. Right now, I'm gonna give you an update regarding breaking news of ICR Nahalagan police arrest prime accused in rupees 34.33 crore fraud case. So guys, as it is reported that in a major breakthrough, Bandardeva police have arrested the prime accused in a high-value financial fraud case involving the alleged cheating of an investor of over rupees 34.33 crore through a sophisticated scheme of forged government documents, impersonation, and false claims of political and bureaucratic influence. The accused, identified as Risiraj Borkothoki, who is 41 years from Guwahati, Assam. He was apprehended on June 20 following a detailed investigation conducted under the supervision of SP ICR Nahalagan, Dr. Neelam Nega. So according to the complaint, the accused allegedly persuaded the investor to fund a proposed extra-neutral alcohol, that's ENA in short, manufacturing project in Assam by portraying himself as a well-connected businessman and allegedly producing forged documents purportedly issued by senior government authorities. Investigators also uncovered the alleged use of a fake WhatsApp account bearing the profile picture of a prominent political leader along with photographs and communications intended to create a false impression of high-level connections. During the operation, police seized 5 mobile phones and a Mercedes-Benz GLE 400D luxury vehicle valued at approximately rupees 1.5 crore. Preliminary findings from the investigations, including scrutiny of bank records, electronic communications, KYC documents, screenshots, and suspected forged documents, have corroborated key aspects of the complaint. Police are now tracing the money trail, examining the involvement of associates and linked entities, and conducting forensic analysis of seized devices to uncover the full extent of the alleged conspiracy. ICR Nahalagan police have reaffirmed their commitment to recovering the proceeds of crime, identifying all beneficiaries and co-conspirators, and bringing those responsible to justice. The public has also been urged to exercise caution while making investments and to verify claims of government approvals or official patronage through authorized channels before committing funds. So there was a outstanding media briefing regarding this ICR Nahalagan police arrest prime accused in rupees 34.33 crore fraud case. So regarding this media briefing, let me show you the glimpse of the footage of it. मीडिया फ्रेंड्स, आप लोगों को आज बुलाया है हमारा बंदरदुआ PS केस नंबर 32/2026 अंडर सेक्शन 112, 316, 5, 318 subsection 4, 319 subsection 2, 336 subsection 3, 341 subsection 1 to BNS का रिगार्डिंग में आप लोगों को बुलाया, आप लोग आया, थैंक यू। हमारा साथ में है हमारा जो केस का आयो SI कोच दादा मेरा राइट साइड में है, और हमारा OC है, इसको जो पर्सनली ग्राउंड में सुपरवाइज़ करके था वो OC इंस्पेक्टर देव है, हमारा लेफ्ट में है। ये एक बहुत बड़ा हमारा नाहरलगुन पुलिस के लिए और अरुणाचल प्रदेश पुलिस के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जहाँ पे हम लोगों ने अराउंड 34 करोड़ का जो फ्रॉड केस है उसमें हम लोगों ने क्रैक किया, वो भी 14 डेज़ के अंदर में। और इसमें हमारा जो टीम है SI तादा, इंस्पेक्टर देव, SDPO ऋषि लोंगदो आज नहीं है, कुछ अलग काम में ग्राउंड में है, तो सभी इंटायर टीम को उसके साथ में जितना टीम है उसको मैं बधाई देना चाहता हूँ। इसका जो
केस हम लोगों ने रजिस्टर किया है 5/6/2026 को, और उसके साथ में उसको जो अरेस्ट है, जो एक्यूज़ को अरेस्ट है, वो हम लोगों ने 20 को अरेस्ट किया, 20 ये महीना का 20 को अरेस्ट किया। और जो एक्यूज़ है ऋषिराज बोरकोटोकी 41 ईयर्स का है, वो है उसका सन ऑफ दिलीप कुमार कोटोकी, कामरूप का है, असम, कामरूप और असम का है। और जो कंप्लेनेंट है मिस्टर राजेश अग्रवाल है। ये जो केस ऐसा है, जो मिस्टर राजेश अग्रवाल है वो अरुणाचल में बचपन से यहाँ का बिजनेसमैन है। उसका पिताजी यहाँ पे काफ़ी सालों से यहाँ पे बिजनेस किया। उसके बाद में बेटा को यहीं पे जन्म दिया और बेटा फिर बाद में बिजनेस कंटिन्यू करने लगा। और उसके बाद में जो बिजनेस वेंचर आउट करने के लिए अलग एरिया में वेंचर आउट करने के लिए उन्होंने एक एथेनॉल फैक्ट्री खोलने के लिए सोचा। एथेनॉल जो फैक्ट्री खोलने के लिए असम में, कामरूप असम गुवाहाटी एरिया में खोलने के लिए सोचा। और इसके चलते उन्होंने क्या किया कि यहाँ वहाँ से बातचीत किया। बातचीत करने के बाद उसका जो एक दोस्त के थ्रू से एक आदमी को मिला, उसका नाम है ऋषिराज बोरकोटोकी, और वो कहता है कि हम आपको इथेनॉल फैक्ट्री दिलवाएगा। तो उसके बाद में जब चिट चैट हुआ, बातचीत हुआ, तो इन द मीन टाइम में क्या हुआ कि मिस्टर बोरकोटोकी, मिस्टर ऋषिराज कहता है कि उसका जो है जो प्रोसेस है उसका सीएम का साथ में तालमेल अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो उसके बाद सीएम का साथ में ऑनरेबल सीएम जो हमारा हेमंत बिस्वा शर्मा का साथ में, जो सीएम असम का है, उसके साथ में तालमेल ठीक ठाक है करके उसका जो उसका मोबाइल नंबर से मैसेज आया वाला, व्हाट्सएप पे मैसेज आया वाला दिखाता है। और सिर्फ मैसेज नहीं आता है, फ़ोन कॉल भी आता है। सबसे हैरानी वाला बात, फ़ोन कॉल भी आने वाला दिखाता है। और फ़ोन कॉल भी ऐसे मिमिक करवाता है कि जो हेमंत बिस्वा शर्मा साहब खुद ही बात कर रहा है जैसा, ऐसे मिमिक करवाता है। और जो अभी वो इट्स ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चलेगा कि वो एआई से यूज़ करके किया, ना किसी को लगा के मिमिक करने वाला करने दे के किया एग्जैक्ट। तो उसके बाद में ये जो मिस्टर राजेश जो है वो भरोसा हो जाता है कि ये सीएम साहब का साथ में, ऑनरेबल सीएम असम का साथ में तालमेल इसका अच्छा है। तो उन्होंने जो बोलता है मानता है। तो जब इथेनॉल फैक्ट्री सिंस सीएमओ का तरफ ऑफिस से उसको बाद में एट द एंड में सीएम साहब ही उसको अप्रूव करेगा, तो उस ऋषिराज जो है मिस्टर राजेश का दिल को जीत लेता है। तो उसके बाद में आफ्टर जब फाइल प्रोसेस शुरू हुआ, उसके बाद में मिस्टर ऋषिराज जो कहता है, राजेश को कहता है कि मेरा कुछ अराउंड 400-500 करोड़ का जो है बिल फंसा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फंसा हुआ है। तो वो अगर उसको निकालने के लिए, जो बिल को है, मेरा बिल को निकालने के लिए हमको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने से ही तभी जाके वो जब क्लियर हो जाएगा, तभी जाके उसके बाद में ही इथेनॉल का ये फैक्ट्री को ही आपका भी अप्रूव करवा देगा। तो सिमिलरली वैसे जैसा ऋषिराज बोलता है वैसे सीएम, ऑनरेबल सीएम जो का नाम से जो उन लोगों ने जो व्हाट्सएप बनाया है और अकाउंट बनाया है, फ़ोन नंबर बनाया है, उसमें भी मैसेज आता है, मैसेज देता है कि ऋषिराज जो कहा है, ऐसे ही जैसा राजेश को, मिस्टर राजेश को मैसेज आता है कि आप इतना पैसा ये जगह पे, फलाना जगह पे पेमेंट कर दीजिए। उसका कहने का हिसाब से जो वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट फोर्ज करके दिखाता है, अपलोड करता है, उसको मिस्टर राजेश को दिखाता है कि मेरा इतना पैसा मिलना है और अभी इतना क्लियरेंस हो गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से, कैबिनेट सेक्रेटरी से, अभी ये इसका रिलीज़ हो गया, क्लियरेंस हो गया, अभी पैसा रिलीज़ होगा तो आपको हम पेमेंट कर देगा, तब तक आप पैसा मेरा लिए पेमेंट कर दीजिए। तो वो ऐसे करते करते एक सिंस 2022 का केस है, तो 22 से चला आ रहा है। तो एक बार कभी 20 लाख पेमेंट करता है, कभी 50 लाख पेमेंट करता है, कभी 1 करोड़ पेमेंट करता है। ऐसे करते बाय द टाइम केस 5/6/2026 को हम लोगों को यहाँ जमा करने तब तक वो ऑलरेडी 34 करोड़ 33 लाख
34,373 अकाउंट ट्रांजैक्शन पेमेंट कर चुका होता है, और वो पूरा हम लोगों को डॉक्यूमेंट के साथ में एफआईआर में उन्होंने सबमिट किया। तो वंस इतना 2022 से लेके 26 तक इतना पैसा पेमेंट करने के बाद, उसके बावजूद भी जब उसका इथेनॉल फैक्ट्री बाद में हुआ ही नहीं, और जब उसको इतना पैसा पेमेंट करने के बाद में जब उसको कांटेक्ट करता है तो उसके बाद में वो धीरे धीरे कॉल को अवॉइड करने लगता है। तब उसको शक होने लग जाता है कि ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, ये उसको ड्यूप किया जा रहा है। तब जाके वो हमारा पास आता है और हम उसको केस रजिस्टर करता है, और हमारा जो ईटानगर नाहरलगुन पुलिस का वन ऑफ द बेस्ट आयो SI कोच था और इंस्पेक्टर देव का हाथ में ये केस को सौंपता है। उन्होंने क्रैक करके इसको ये जो बंदा है मिस्टर ऋषि राज बोर कोटोकी को 41 ईयर्स का है, उसको ये 20 तारीख को अरेस्ट किया। उसके साथ में एक मर्सिडीज बेंज GLE 400D 1,50,00,000 का दाम का है, उसको हम लोगों ने सीज किया। उसके साथ में 5 मोबाइल सीज किया, और वो मोबाइल एक मोबाइल जिससे जो ऑनरेबल CM हेमंत बिस्वा शर्मा जी को इम्पर्सनेट करके जो उसको मैसेज भेज रहा था, कॉल कर रहा था, वो मोबाइल भी हम लोगों ने सीज किया हुआ है। सीज करके अभी उसको हम लोग उसको FSL के लिए फॉरेंसिक टीम में भेजेगा, उसको अच्छा से उसको जांच पड़ताल करने देगा। और अभी इसका जो जांच पड़ताल है ढंग से कर रहा है। उसमें जो इन्वॉल्व है, सिंस इसमें कुछ ऐसे भी है कि सिंस उधर से मिस्टर राजेश से पैसा जाता है 2-3 फार्म में, 2-3 फार्म से फिर उसके बाद वो अपना अकाउंट में लगाता है। तो फार्म का जो साथ में जो कॉन्स्पिरेशन किसने किया, उसको जांच पड़ताल करने के बाद जो मिलेगा उसको हम लोग भी फिर फर्दर अरेस्ट करेगा। एज ऑफ नाउ यही मिस्टर ऋषि राज ही इसमें टोटली इन्वॉल्व है, उसके अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वही सिंगल हैंडेडली किया है उसके बीवी के साथ में, तो इसलिए हम लोगों ने उसको अरेस्ट किया है। ये कह के मैं अपना टीम को जो SI तादा और इंस्पेक्टर देव को मैं बधाई देता हूँ। अरुणाचल पुलिस, नाहरलगुन पुलिस को एक प्राउड कराने के लिए मैं उन लोगों को थैंक यू कहता हूँ। एनीथिंग अभी भी सिंस मैंने बोला कि जो अकाउंट डिटेल है उसका अभी भी KYC मंगाया हुआ है और जांच पड़ताल चल रहा है। कुछ वाइफ का भी इन्वॉल्वमेंट दिखेगा नहीं दिखेगा, और जांच पड़ताल का बाद पता चलेगा। जांच पड़ताल करके उसके बाद वाइफ भी इन्वॉल्वमेंट होता है या उसका कोई दोस्त इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसको भी हम लोग अरेस्ट करेंगे। एज ऑफ नाउ मिस्टर ऋषि राज क्लियर कट इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया। ये इसका बिजनेस अलग था। ये उसका जो पिताजी है, पिताजी का साथ में पहले उस ज़माना में कुंडा उंडा का बिजनेस था, और उसके बाद में फिर अलग बिजनेस पकड़ा जब वो बैन हो गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बैन हो गया। उसके बाद में जो रुपया पैसा है उसके बाद अलग बिजनेस किया। इसके साथ में जब पता चला कि जो अभी अरुणाचल में आप लोग देख रहा होगा डिस्टिलरी काफ़ी है बियर का, अल्कोहल का, तो जब अल्कोहल बनाने के लिए इथेनॉल ज़रूरी होता है। नॉर्थ ईस्ट में चाहे वो मिजोरम में हो, चाहे वो नागालैंड में हो, कहीं भी जगह पे अगर कोई डिस्टिलरी है, तो अगर बियर का है, अल्कोहल का है, तो उसके लिए एथेनॉल का ज़रूरी होता है। तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि उसका फैक्ट्री बनाएगा ताकि वो असम में बीच में जो गुवाहाटी एरिया में बीच में बनेगा तो यहाँ वहाँ भेजने के लिए ईजी होगा। तो वो सोच के उन लोगों ने उसमें पार्ट लिया। उसका जो उन्होंने बिजनेस एक आइडिया निकाला और निकाल के किसके साथ पार्टनरशिप करने के लिए उन्होंने ढूंढा, तब जाके ये ऋषि राज को मिला। तो ऋषि राज बाद में देखा तो ये बिजनेस ऐसे करने वाला है ही नहीं, ये तो एक ठगबाज आदमी निकला। ऐसे कुछ नहीं है। एज ऑफ नाउ सिर्फ जो दिख रहा है फोर्जरी का दिख रहा है। मतलब वेरी एकदम हाई लेवल फोर्जरी। साइन लगा देता है, जो सील वूल है वो पूरा लगा के किया वाला है। एज ऑफ ना वो दिख रहा है हमारा जो जांच पड़ताल का हिसाब से। बट एज आई टोल्ड यू, हम ये डॉक्यूमेंट को फॉरेंसिक में भेजेगा। फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो ओपिनियन देगा वो फाइनल होगा। उसका उधर भेज के उसका ओपिनियन मिलने के लिए
कभी कभी हफ्ता लग जाता है, कभी कभी महीना लग जाता है। तो जैसा उसका ओपिनियन आएगा उसका हिसाब से हम उसका कार्रवाई करेंगे। जब जांच पड़ताल किया इनिशियल में ही, जब नंबर मिला है, नंबर को हमने भी 2-3 जगह में लगा के जांच पड़ताल किया, तो उसमें वो ऑनरेबल सीएम का नंबर नहीं है, वो एक फ्रॉड का नंबर है। एक क्या बोलेगा, एक ऑनरेबल सीएम का नाम ही उसमें निकलता नहीं है। ऑनरेबल विश्वास शर्मा साहब का उसका नाम ही उसमें नहीं निकलता है। तो इसीलिए अभी तक जो है इन्वेस्टिगेशन का हिसाब से ये टोटली एक मिसलीडिंग वाला ये है। उसको मिस्टर राजेश अग्रवाल को उन्होंने मिसलीड किया है करके उन्होंने फ्रॉड किया है, धोखाबाजी किया है। हमारा पास में है, पुलिस कस्टडी में रिमांड 10 दिन का रिमांड दिया हुआ है। उसका क्वेश्चनिंग चलेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, जो हमारा लेवल में, कोर्ट का लेवल में वाला नहीं, हमारा जो पुलिस वाला लेवल में जितना भी है, उसका जितना भी है एविडेंस का, और जितना हम लोगों को जितना शक है, हम लोगों को जो केस का रिलेटेड में जितना इन्फॉर्मेशन लेना है, जितना डॉक्यूमेंट लेना है, वो हम मिस्टर ऋषिराज से कलेक्ट करने का ये 10 दिन में कोशिश करेगा। आपने सही बोला, आप मनोज जी, आप भी यहाँ अरुणाचल में काफ़ी साल से हैं, मैं भी आपको काफ़ी क्या बोलेगा, मेरा स्कूल समय से मैं देख रहा हूँ, और आप भी अरुणाचल का हिस्सा ही होगा, अरुणाचली जैसा ही हो गया। यहाँ का लोगों को आप रग रग से पता है कि कितना इनोसेंट है यहाँ, तो जल्दी भरोसा कर लेता है। तो मैं अपना लोगों को मैं यही बोलूँगा कि आप जल्दी विश्वास ना करें। विश्वास करना अच्छा बात है, ऑनेस्ट रहना अच्छा बात है, बट क्रॉस चेक कर लीजिए पहले। विश्वास करने से पहले क्रॉस चेक कर लीजिए। क्रॉस चेक जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन कोई कंपनी का आदमी ये बताता है, अभी ये तो जो मैं एसपी यूपिया रहा हूँ, एसपी अभी नाहरलगुन रह रहा हूँ, इस दौरान में मैंने अभी काफ़ी फ्रॉड का केसेस में अभी हैंडल कर चुका हूँ। तो इसमें जो मैं देखता हूँ कि कोई कंपनी से आएगा, कोई गवर्नमेंट का एजेंसी से बताता है, कोई उधर से बताता है, बोलने के बाद में वो भरोसा कर लेता है। मेरा तो हमेशा कहना है, भरोसा करने से पहले अगर वो बोलता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है, कमिश्नर है, उसको सीधा बात कर लीजिए कि सच्ची में आपका आदमी है ना नहीं। अगर कोई कहता है कि ये बैंक का है करके लोन देगा करके भी बहुत को ड्यूप कर चुका है, अगर बैंक का है कहता है तो बैंक वाला को सीधा बात कर लीजिए। उसके बाद भी आपको अगर कन्फ्यूज़न है कि अगर आपको बैंक वाला का है ना, या फाइनेंस डिपार्टमेंट का है ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट का है ना, कहाँ का हेल्थ डिपार्टमेंट का है, अगर आपको इतना जाने का आपको क्षमता नहीं, या आपको इतना ढूंढने का आपको तकलीफ होता है, तो सबसे ईजीएस्ट प्लेस पुलिस थाना में एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि ये जो बंदा बोल रहा है क्या सही है ना नहीं है। एसपी ऑफिस में आ जाए, एसपी को बात कर लीजिए, या डीसी ऑफिस में पूछ लीजिए। सबसे बेस्ट थाना एसपी ऑफिस। हमारा पास इक्विपमेंट है, हमारा पास में मोबाइल इक्विपमेंट है, फॉरेंसिक इक्विपमेंट है हमारा लेवल में, जो हम आपको असिस्ट कर सकता है कि ये सच्ची में सच बोल रहा है ना नहीं बोल रहा है। जैसा मैंने थोड़ा देर पहले बोला कि जैसा ही वो बंदा जो कंप्लेनेंट उस दिन मेरा यहाँ चैम्बर में आया था, उस समय में मैंने एक उसका जो नंबर था उसको मैंने ऑनरेबल सीएम का है बोल के उन्होंने जो नंबर बताया था, उसको हमने किसी चीज़ में, हमारा पास एक टूल है, पुलिस डिपार्टमेंट का टूल, उसमें लगाया तो किसी और का दिखा रहा था, ऑनरेबल सीएम का दिखा नहीं रहा था। डेट मीन्स वो एक ब्लैक में सिम लिया होगा। तो वैसे टाइप का हम इमीडिएट आप लोगों को गाइडेंस दे सकता है। तो इसीलिए मैं पब्लिक को मैं वंस अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भरोसा करने से पहले क्रॉस चेक अच्छा से कर लीजिए। और हम है पुलिस वाला, हम साथ देगा। आप हमें यू बी ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। कुछ बोलने से पहले, कुछ करने से पहले आप लोग सोचिए, हम हमेशा आपके साथ में हैं। थैंक यू।